Hello class, very good morning and I hope you all are very fit and fine. So again I'm here with the chemistry third chapter metal and non-metal. So see that and we start our topic with chapter with the topic first electronic configuration of metal. Clear? I'm starting with this topic. Why? Because these things you also studied in 9th class. Clear? So see that electronic configuration of metal and the tendency of metal, how the electrons are gaining and how the electrons is losing in this metal and non-metal. So see that suppose you have a element called sodium having atom number 11. So now the electronic configuration is 2, 8 and 1. Clear? So this 2 or 8, I told you earlier the last electrons 8 is called the complete octet, and this 1 electron is called the valency electron. Okay. This electron is called valence electron. Clear? Valence electrons, that means the electrons is present in valency cell या last cell. It's called valence electron. It's clear? So see that if you know now sodium is need 7 extra electron to get complete the octet. ठीक है, हम इसकी बात तो नहीं करेंगे बिकॉज अभी हमारे पास एक सेल और इंक्रीज हुआ है जहां पे एक इलेक्ट्रॉन है आपके पास. ठीक है, तो देखिए अगर आपको सोडियम का ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो आपको क्या चाहिए, 7 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए. या एक बड़ा अच्छा मेथड है कि आप इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकते हैं. ठीक है, व्हेन यू लूज देयर 1 इलेक्ट्रॉन्स सो इट विल फॉर्म इन दिस मैनर Na2 Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव आउट. ठीक है, सोडियम था आपके पास, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया. ठीक है, क्यों डोनेट किया भैया, क्योंकि आपको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है. एवरीवन वांट टू बी स्टेबल. ठीक है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टू डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन और द एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स. द रीजन इज ओनली वन, दैट मीन टू बी स्टेबल. एवरीवन वांट टू स्टेबल. ठीक है, वी ऑल नो दैट द फिनोमिना फॉर स्टेबिलिटी इन द ह्यूमंस are the different, but in the element, in the atom, the phenomena, the process is only one, to donate the electrons, to accept the electrons, to be stable. Now you see that now this sodium plus is stable. The electronic configuration of sodium is 2, 8, 1 and this is the 2 or 8 only. Clear? And this 8 is the significance that this atom is stable. Why? According to the octet rule, I told you what is the octet rule. ठीक है, that means having the 8 electron in their last cell is called octet rule. ठीक है, वो आपको बताएगा कि you are the stable और you are the not. ठीक है, केवल एक ही बात करेंगे जिसे बोलते हैं octet रूल की. ठीक है, सारी बातें कर चुके थे लास्ट टाइम पे. So see that now this sodium is 2 or 8. ठीक है, so you can say that the metals are those which donate their electrons to form electropositive. ठीक है, metals, now right here metals are donate their electrons, electrons to be stable and form electropositive. So this is called the electropositive atom, the electropositive metal. So always remember that metals have the tendency to release the electrons, to donate the electrons. ठीक है, metals are donate the electrons to be stable and form electropositive. So this is the another one of the definition of metal. ठीक है, मेटल कौन होते हैं, metals are those which able to donate their electrons to be form electropositive species or
atoms. Clear? So this is the definition of metal. It's clear that when the metals are tendency to lose their electrons to form electropositive. ठीक है? It's happen the same with the other element also, the other metal also. ठीक है? Suppose you see that you have magnesium having having electrons 12, atom number 12. So electronic configuration 2 8 2. ठीक है? These two extra electron is present in the outermost cell, so it also lose the electrons Mg to Mg 2 plus by raising of 2 electrons. ठीक है? बात समझ गए? क्या करेगा? बार बार मेटल क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता रहेगा. ठीक है? लूज क्यों कर रहा है? स्टेबल होना है. और दूसरी बात क्या होना है? टेंडेंसी है मेटल का, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन्स देना ही देना है. इलेक्ट्रॉन्स देगा तभी इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनेगा. ठीक है? नाउ सी दैट नेक्स्ट यू हैव द एल्यूमिनियम, सपोज 13. सो एल्यूमिनियम हैव रिलीज देयर 3 इलेक्ट्रॉन्स इन दिस मैनर. ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 8 3. नाउ हियर इज 2, 8. ठीक है? प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स दे दिया. ठीक है? देखिए अब ये जो 2, 8 है, ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है? ठीक है? किसके जैसा इन्हें बनना है? ठीक है? So see that this 2, 8 having the total number of electrons is 10, and 10 is neon. ठीक है? Neon is called the inert gas. This is the inert gas. Inert gas, that means those gases are not react to anyone. ठीक है? And the octet is complete of these gases. यही एक पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट हैं जिनका ऑक्टेट क्या होता है? कंप्लीट होता है. एंड दे आर द इनर्ट, दे आर द नोबल गैस, एंड दे आर ऑल्सो सेड द जीरो ग्रुप. क्लियर? बात समझ गए? तो 2, 8 किसका है? आपका नियॉन का. सो ऑल द एलिमेंट एंड ऑल द एटम्स ऑफ पीरियोडिक टेबल वांट टू गेट अचीव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ दीज इनर्ट गैसेस. ठीक है? सभी एलिमेंट को बनना है इनर्ट गैस. ठीक है? बात समझ गए? इफ यू गेट द इनर्ट गैस, दैट मीन यू विल नॉट रिएक्ट टू एनीवन. इट्स क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ मेटल्स, एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मेटल. दैट मीन द मेटल्स आर दोज व्हिच लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज. क्लियर? और रीजन क्या होगा? टू बी stable. So now next thing is that the physical properties of metal. Physical properties of metal. ठीक है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. ठीक है? मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? फिजिकल मीन्स जो आप बाहर से देख के बता सकते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ है डिफरेंस. ठीक है? उसे कहेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है? या फिजिकल प्रॉपर्टीज आप क्या बोलते हैं? विच नॉट अंडरगो केमिकल रिएक्शन. ठीक है? वही रहेगा सेम. टेम्परेचर का, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस पर. ठीक है? या किसी केमिकल रिएक्शन में नहीं जा रहा होगा. ठीक है? सपोज ये पेन था मेरे पास, फिजिकल, आई एम अप्लाइंग द एनर्जी, आई एम अप्लाइंग द फोर्स ऑन इट, एंड आई ब्रेक दिस पेन. व्हाट विल हैपन? एनी केमिकल चेंज इज देयर? नो केमिकल चेंज. ठीक है? सेम प्रोडक्ट आई गॉट, एक के बदले 2 पेन होगी मेरे पास. ठीक है? सो दिस कॉल्ड द फिजिकल प्रॉपर्टीज. या एंड सेकंड वाज द केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज. ठीक है? जो आप बात करते थे इन द लोअर क्लासेस. सो द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज दैट metal are solid. Metals are solids. ठीक है? Solids you can say 3 state of matter you have: solid, liquid और gas. ठीक है? So generally metal are solid, but except mercury. Mercury is in liquid form. फॉर्म. ठीक है? क्योंकि मरकरी एक ऐसा मेटल है
जो क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे आपका लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ठीक है, आई एम डिफाइनिंग ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज एट द रूम टेम्परेचर। ठीक है, हम एक्सट्राऑर्डिनरी टेम्परेचर अप्लाई नहीं कर रहे इनके ऊपर। ठीक है, बट रूम टेम्परेचर पर आपके मेटल क्या होंगे, जनरली सॉलिड्स होंगे एक्सेप्ट योर मर्करी। ठीक है, सेकेंड थिंग इज दैट you can say that metal are lustrous in nature। ठीक है, lustrous means is that shining properties। ठीक है, जो आपके मेटल होते हैं उनमें क्या होती है, बहुत अच्छी शाइनिंग होती है। लाइक यू हैव द गोल्ड, like you have the aluminium, like you have the copper, all have the lustrous properties। ठीक है, बात समझ गए, सबका अपना अपना क्या होता है, डिफरेंट कलर होता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द लस्ट्रस प्रॉपर्टीज। ठीक है, थर्ड थिंग, ये थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट सोनोरस प्रॉपर्टी। सोनोरस प्रॉपर्टीज। ठीक है, व्हाट द मीन ऑफ सोनोरस। ठीक है, सोनोरस इज मीन दैट व्हेन a metal is struck with a hard surface, a solid surface, it produce sound। ठीक है, produce sounds। ठीक है, जब भी कोई मेटल किसी हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करेगा तो आपको क्या मिलेगी, एक साउंड का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, उसे कहते हैं सोनोरस प्रॉपर्टी। ठीक है, द फोर्थ थिंग इज दैट डक्टाइल प्रॉपर्टी। Ductile property, that means you can make wires of metal। ठीक है, this is called ductile property। ठीक है, डक्टाइल में क्या करेंगे, आप लंबी लंबी चेनें बना सकते हैं, लंबी लंबी वायर्स बना सकते हैं। यू आर सीइंग दैट यू हैव द लॉट्स ऑफ वायर। ठीक है, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर। ठीक है, जो आप घरों में यूज कर रहे हैं। सो दीज थिंग्स या दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, डक्टाइल प्रॉपर्टी। ठीक है, next thing is that 5 you have the malleable property। malleable properties। ठीक है, malleable means is that you can beat the metals and turn in the thinner sheet। ठीक है, when you beat the metal it can be convert into the thinner sheets। ठीक है, उन्हें आप सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत पतली पतली सीट बना सकते हैं उनसे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द मैलेबल प्रॉपर्टीज। ठीक है, सोनोरस, डक्टाइल, मैलेबल एंड द लस्ट्रस आर द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यही क्या डिफाइन करती है, आपका मेटेलिक कैरेक्टर को डिफाइन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग यू कैन ऑल्सो डिफाइन दैट द मेटल्स आर द कंडक्टर of heat and energy, heat and electricity, you can say that। ठीक है, जो आपके मेटल होंगे वो क्या होंगे, कंडक्टर होंगे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, ऑब्वियसली। ठीक है, यू हैव द कॉपर वायर, वी आर यूजिंग द कॉपर वायर एट अवर होम्स, दैट मीन ऑब्वियसली इट वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट्स क्लियर। एंड obviously the conductor of heat। ठीक है, it transfer the heat from one corner to another corner। ठीक है, ऐसे क्या करेगा, हीट को ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, एंड ऑल्सो यू कैन डिफाइन द मेटल्स आर हार्ड, बहुत हार्ड होते हैं। ठीक है, मेटल्स आर हार्ड, बट एक्सेप्शन भी है, द सोडियम, पोटेशियम एंड द लिथियम आर द वेरी सॉफ्ट मेटल। ठीक है, so you can see that you have metal also hard in nature। ठीक है, फर्स्ट या 7th 8th जो भी नंबर आपका है, हार्ड इन नेचर। हार्ड इन नेचर, मेटल आर हार्ड इन नेचर। मेटल हार्ड है आपके पास, हार्ड है एक्सेप्ट लिथियम, सोडियम एंड द पोटेशियम। ठीक है, बहुत हार्ड होते हैं आपके पास, सॉरी एक्सेप्ट है आपके पास, दिस एक्सेप्शन, एक्सेप्ट दीज मेटल। ठीक है, दीज मेटल आर सॉफ्ट इन नेचर, सॉफ्ट इन नेचर एंड यू कैन कट दिस मेटल बाय नाइफ। ठीक है, इतने सॉफ्ट होते हैं।
ठीक है. एंड वी ऑल्सो नो दैट द रिएक्टिविटी ऑफ दिस सोडियम एंड द पोटेशियम इज वेरी हाई. बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं. लिथियम भी रिएक्टिव होता है. ठीक है. लेबोरेटरी में यू चेक दैट द सोडियम इज kept in kerosene. kept in kerosene. ठीक है. केरोसिन के डब्बे में बंद करके रखा जाता है इस सोडियम मेटल. व्हाई? बिकॉज इट्स वेरी रिएक्टिव मेटल एंड व्हेन इट कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद द एयर इट एक्सप्लोज. ठीक है. क्या कर जाएगा? काफी एक्सप्लोसिव रिएक्शन देगा आपको. ठीक है. तुरंत आग पकड़ेगा. ठीक है. कौन? सोडियम मेटल या लिथियम या फिर पोटेशियम. ठीक है. व्हाई? बिकॉज द रिएक्टिविटी ऑफ दीज मेटल्स इज वेरी हाई. ठीक है. दैट्स व्हाई वी कैप दीज मेटल अंडर केरोसिन ऑयल. ठीक है. एंड दिस इज कॉल्ड द हार्ड नेचर ऑफ मेटल. ठीक है. पानी के कांटेक्ट में जैसे आएगा आग लग जाएगी. ठीक है. एयर के कांटेक्ट में जैसे आएगा इस मेटल पर आग लग जाएगी. ठीक है. सो टू अवॉइड the contact of air will kept this metal in kerosene oil. ठीक है. So this is the general properties of metal. Clear? कैसी properties हैं? Physical properties. ठीक है. So now see that what is the non-metal? What is the non-metal? Non-metal क्या होगा? ठीक है. Non-metal is that to accept the electrons. एक्सेप्ट दी इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा. ठीक है. सपोज यू से दैट द क्लोरीन इज एक्सेप्ट द 1 इलेक्ट्रॉन्स इन दिस मैनर. ठीक है. देखिए क्लोरीन आपके पास था हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7. ठीक है. देखिए ऑक्टेट कंप्लीट करना है 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए. अगर आप इस सोडियम इस क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे दें कहीं से या ये कहीं से इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर ले एक्सेप्ट कर ले सो इट विल हैव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और 8. दैट मीन 8 इलेक्ट्रॉन सिग्निफिकेंस दैट स्टेबल एटम. सो दिस एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म Cl नेगेटिव. एंड नाउ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 8 और 8. ठीक है. ये आपके पास क्या है? नॉन मेटल आपके पास है. ठीक हो गया. सी द ऑक्सीजन O हैविंग इलेक्ट्रॉन्स 8 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6. ठीक है. इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो बना देगा O2 नेगेटिव. नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,8. क्लियर. सेम फॉर द नाइट्रोजन having the electron 7 electronic configuration 2,5. so it need the 3 electrons to get stable. so it accept the 3 electrons and form -3. now electronic configuration is 2,8. so these are the non-metal. that means the non-metal are those which accept the electrons to be stable and form electronegative species. नेगेटिव स्पीसीज. ठीक है. क्या बना देंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज बना देंगे. ठीक है. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नॉन मेटल.